So our next topic is XML, that is that is extensible markup language. Okay, so XML क्या एक extensible markup language है, means HTML also is a markup language, but there are some differences between the HTML and the XML. Okay, so we'll see what are the differences. Fine, and first we'll see what is XML. So XML stands for that is extensible markup language, and it is a text based markup language derived from standard generalized markup language. HTML is a meta markup language. A meta markup language is a language that means it allows us to create our own text. Okay, so in that is in HTML what we have now, see whatever texts are present, we only have to use that, like paragraph, heading and all. But using XML we can create our own tag. Okay, we can create our means own tag in you will study in the when it comes to validation of XML, so schema and DTD. So we'll study these types of things, so then the things will be more clear to you. Then XML tag identify the data and are used to store and organize. This is very important and can be a very big good you can say difference. Okay, so it is used to define, it is XML tags identify the data and are used to store and organize. Okay, ये store करता है डाटा को और उसको organize करता है. XML tag identify the data and are used to store and organize the data rather than specifying how to display it like HTML tags which are used to display the data. Hope this is the you can say difference also कि XML क्या करता है, स्टोर कर रहा है आपके डाटा को. यानी फॉर एग्जांपल जो एक कनेक्टिविटी यू कैन से डाटाबेस हुआ आपका, फिर वो SQL हुआ, कुछ भी हुआ, सो व्हाट यू आर डूइंग इट इज यू कैन से ये एक XML लाइक डिफाइन कर रहा है एक स्ट्रक्चर को. ओके, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर. बट आपका जब हम HTML की बात करते हैं तो वो डिस्प्ले करता है डाटा को, लेकिन वो जो डाटा है उसको स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कम्स अंडर द XML. ओके, नाउ व्हाट आर द characteristics of XML. तो first of all it is extensible, means what extensible is कि it allows the programmer creator to create your own self descriptive text or language that suits your application. XML carries the data, does not present it, मतलब ये carry करता है data, does not present. XML allows you to store the data irrespective of how it will be presented, means it do the storing work you can say. XML is a public standard developed by an organization that is WW Consortium and is available as an open standard. So there is a syntax, जैसे हम HTML के syntax की बात करें तो first of all doc type and all these things are the same. आपका XML में क्या है, this question mark XML version 1.0, then contact info name, जैसे हमने संदीप copyright सब हमने ये कुछ यूज़ किए, ठीक है, name company phone like this. तो this is the normal example सिंटेक्स. नेक्स्ट आता है आपके एट्रीब्यूट. अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सबसे पहले XML डिक्लेरेशन, दैट इज कौन सा वर्जन यू कैन से यूज कर रहे हो, टैग्स एंड एलिमेंट, सिंटेक्स, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट. क्या होता है, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट होता है कि जैसे आपका रूट है, okay, we'll see that logic. Okay, root element and case sensitive. So XML क्या है, case sensitive है, like in HTML is not case sensitive. अगर हम उसमें मतलब it is not, you understand what is case sensitive, but when it comes to XML is case sensitive. Okay, next is ओके नाउ दैट इज अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML और XML में डिफरेंस क्या है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट इज HTML, वी नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी स्टडी. HTML इज यूज टू डिस्प्ले डाटा, फोकस करता है ऑन हाउ डाटा लुक्स, एंड XML क्या है, एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है. ओके, टूल है जो कि यूज होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द डाटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट फोकसेस ऑन व्हाट डाटा इज, डाटा है क्या, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इस मार्कअप लैंग्वेज का. नेक्स्ट है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज इटसेल्फ. ओके, एंड XML प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेजेस. ओके, इट इज अ फ्रेमवर्क क्योंकि डाटा को स्टोर कर रहा है, जो उस डाटा को स्टोर किया उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो लाइक दिस. ओके,
HTML is a presentation language, whereas XML is neither presentation nor a programming language. HTML has its own predefined tag. Yes, HTML के अपने predefined tag होते हैं, but आप you can define tags according to your need. Okay, in your XML. In HTML it is not necessary to choose a closing tag. Okay, जैसे हमने image वाला देखा था, तो image is a tag जिसमें हमें उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन XML it is mandatory to close a tag. XML में जो भी आप बनाते हो, HTML स्टैटिक रहता है बिकॉज इट इज़ यूज टू जस्ट डिस्प्ले कर रहा है डाटा, उसमें कोई भी डायनामिकली कुछ भी नहीं है, बट XML इज डायनामिक बिकॉज इट यूज टू ट्रांसपोर्ट डाटा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. XML वैलिडेशन. वैलिडेशन क्या है कि हाउ वी कैन प्रेजेंट, इन वॉट वे वी कैन प्रेजेंट द XML. वैलिडेशन यू कैन से कि हम उसको कैसे कैसे कितने टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं. सो XML फाइल कैन बी वैलिडेटेड बाय 2 ways. कैसा? फर्स्ट क्या है कि वेज डिफाइन XML स्ट्रक्चर अगेंस्ट DT, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, एंड दूसरा आता है आपका XML स्कीमा डेफिनेशन. तो विल स्टडी वन बाय वन व्हाट दीज टू आर एंड हाउ दे विल वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल that is we'll study about DTD. So DTD क्या है आपका? that is DTD is a technique, that is it is used to define the structure of XML document and इसका एक्सटेंशन क्या रहता है आपका? DTD डॉट DTD एक्सटेंशन हम इसके लिए यूज करते हैं. देन DTD कंटेन एलिमेंट डिक्लेरेशन, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन, एंटिटी रेफरेंसेस डिक्लेरेशन. अब एलिमेंट डिक्लेरेशन के लिए क्या, जैसे ये हो गया एलिमेंट. ओके, एलिमेंट का नेम जो भी कंटेंट मॉडल है. देन एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन, एट्रीब्यूट ना, एट्रीब्यूट लिस्ट, एलिमेंट नेम लाइक दिस, एंटिटी एंड एग्जाम्पल. बट बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इसमें जो तीनों में हम एलिमेंट की डिक्लेरेशन की हम ज़्यादा बात करते हैं. ठीक है, एलिमेंट एड्रेस, नेम, कंपनी एंड फोन लाइक दिस. एक एग्जाम्पल है कि हाउ विल यूज देम. ओके, सो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या, जैसे इसमें दिया हुआ है डॉक टाइप एलिमेंट, डिक्लेरेशन 1, डिक्लेरेशन 2. ओके, सो इफ वी कम टू द एग्जाम्पल, सो इट्स लाइक ओके एलिमेंट. मैंने पहले बताया था हम एलिमेंट की ज़्यादा बात करते हैं. एड्रेस जो भी मतलब हम बना रहे, दिस दीज आर सेल्फ डिफाइंड टेक्स्ट ना. ओके, सो एलिमेंट हुआ. ठीक है, देन एड्रेस जो भी है उसका नेम, कंपनी, फ़ोन. ठीक है, देन इसको क्लोज कर देंगे एलिमेंट को. देन नेम जो भी है उसका नेम, देन कंपनी, देन फ़ोन लाइक दिस. ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ DTD. अब टाइप्स ऑफ DTD का मतलब है कि आपके कितने टाइप है. तो सेम जैसे हमारा इंटरनल CSS होता है और आउटसाइड ये होता है CSS होता है, तो वैसे ये भी हमारा इंटरनल आउटसाइड होता है. तो इंटरनल DTD क्या होता है? विच आर DTD इज रेफर टू एज इंटरनल DTD इफ एलिमेंट्स आर डिक्लेयर विद इन द एक्स. जो मतलब आपका XML फाइल है. ओके, उस जैसे हमने HTML में देखा, हम CSS कर रहे थे, हमने दूसरा एक शीटलेस स्टाइल डॉट CSS करके हमने एक और बनाया सबलाइम टेक्स्ट में, और फिर हमने उसको लिंकअप किया विद हमारा जो भी index.html हमारी मेन कोडिंग वाली फाइल थी. तो जो भी हमने चेंजेस करने थे, कुछ भी करना था, तो वो सब हमारा किस में हो रहा था? दैट ऑल द थिंग्स हैपन मेरे हम जो भी चेंजेस करते वो style.css वाली शीट में कर रहे थे. एंड वो जब हम उसको सेव कर रहे थे तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था मेरा. तो इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं कि वी हैव हमारे पास इंटरनल DTD है, दैट इज रेफर्ड टू एज इंटरनल DTD इफ एलिमेंट्स आर डिक्लेयर विद इन द XML फाइल. जैसे ये हो गया आपका एग्जाम्पल है इसका. दिस इज अ एग्जाम्पल XML वर्जन. ठीक है, ये तो है ही हमारा डॉक एड्रेस. अब ये क्या है आपका? जैसे विद इन द XML जो हमारा है कोड, उसी के अंदर एलिमेंट एड्रेस नेम स्पेस फ़ोन, देन आफ्टर दैट एलिमेंट नेम कंपनी फ़ोन. ओके, मतलब ये क्या लिए, जैसे हम जब सिंटेक्स की हमने बात करी थी, तो अगर हम सिंटेक्स देखें तो हमारा सबसे पहले होता है रूट एलिमेंट होता है. सो ये क्या है? एड्रेस में क्या है? दिस इज यू कैन से द रूट एलिमेंट, नेम, कंपनी, फ़ोन. फिर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नेम क्या है, कंपनी क्या है, फ़ोन क्या है. ठीक है, देन एड्रेस, नेम, फिर हमने इसमें वो डाला हुआ है कि व्हाट आर द इनपुट. जैसे हम HTML में कर रहे थे, तो एंड जो भी हमने टैग लिया हमने उसको क्लोज भी किया है. ठीक है, लाइक दिस. तो नेम लिया तो नेम को क्लोज करना है, कंपनी क्लोज, फ़ोन. देन यहाँ पे मैंने एड्रेस का टैग बनाया था एंड देन मैंने एड्रेस को क्या किया है? क्लोज किया है. ठीक है, इन दैट वे.
अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल डीटीडी क्या होता है. इन एक्सटर्नल डीटीडी एलिमेंट्स आर डिक्लेयर आउटसाइड द एक्सएमएल फाइल. यानी सेम हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिफाई स्पेसिफाइंग द सिस्टम एट्रीब्यूट विच मे बी आइदर द डॉट डीटीडी फाइल और अ वैलिड यूआरएल करके हम उसको आउटसाइड एक्सएमएल फाइल हम उसको चेंजेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे भी एलिमेंट, एड्रेस, नेम, कंपनी, फोन, देन होप सो नाउ दिस टाइम आपको समझ आ गया होगा. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारा जैसे हमने इसको, ये था मेरा डीटीडी का, ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया, सेव एज एड्रेस डॉट डीटीडी, मैंने इसको सेव किया, ठीक है, ये मेरा आउटसाइड फाइल था. अब ये मेरा जो है दिस इज माय एक्सएमएल वन. ओके, ये सेव दिस फाइल इन डॉट एक्सएमएल, ये मेरा एक्सएमएल का है. ये यूटीएफ वगैरह कोडिंग स्टैंड लो वर्जन दीज और यू नो डॉक टाइप सिस्टम एड्रेस नेम कंपनी फोन लाइक दिस. बट जो मेरा वो था मैंने बाहर इसको वो कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था. तो इन दिस वे वी कैन यूज द डीटीडी वैलिडेशन. ओके, नेक्स्ट आता है एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन क्या होता है. दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडेशन. सो व्हाट इज इट? इट इज कॉमनली नोन एज एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन which is used to describe and validate the structure and the content of XML data. Now XML schema defines the elements, attributes and data type. Schema and it support namespace. This is the main difference जो आपका DTD और आपके schema का रहता है, that is namespace का. Okay, we'll see क्या है इसमें जो हम example करेंगे. So it is similar to a database schema that describe the data in a database. Okay, so definition type simple type जैसे आपका क्या रहता है, that is simple type element is used only the context of the text of some ओके तो ये भी क्या है आपका दो टाइप का हम से देख सकते हैं. जो डेफिनेशन टाइप रहता है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, दैट इज एक सिंपल टाइप एक कॉम्प्लेक्स टाइप. सिंपल टाइप क्या हो गया, एलिमेंट इज जैसे सिंपली मतलब प्री डिफाइंड सिंपल टाइप होते हैं एक्सेस एंड टीजर डॉट बुलियन स्ट्रिंग लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेस. ये जो एक्सेस है ठीक है दैट इज द नेम स्पेसेस हम इसमें यूज करते हैं. फोन नंबर टाइप एक्सेस डॉट इन लाइक दिस. कॉम्प्लेक्स का क्या रहेगा, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स की स्टोरी वही हो जाएगी, इज द टाइप ऑफ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट डेफिनेशन. जैसे दिस allows you to specify which child element an element can contain. some मतलब root और child का concept आ गया है, ठीक है, to provide some structure within your XML document. For example, this is XX element name, that is address. Then complex type access dot sequence, then this is the example. then element name जो भी होगा string किस टाइप का है, then company, then phone, all this. तो हमने access को हमने sequence को उसको क्लोज कर दिया. ओके, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड एक्सेस डॉट एलिमेंट, देन जहाँ से हमने शुरू किया था एक्सेस एलिमेंट से तो विल क्लोज दैट वन. ओके, सो दैट इज आपका क्या होता है, ये आपके दो तरह के क्या है, यू कैन से आपके टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है, दैट इज स्कीमा एंड डीटीडी. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सएमएल. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दोनों ही वैलिडेशंस को जस्ट स्टडी वेरी केयरफुली, इनका सिंटेक्स एंड ऑल एंड एग्जाम्पल एंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML. ओके, सो थैंक यू.